to have you on the show. And when I was thinking to plan some yoga classes for this program, I could not find somebody better than you with whom I have worked in the Army Sports Institute also earlier. I would request you another 2 to 3 minutes. You give them a brief how fencers should do during the lockdown, what all yoga exercises. And I promise you, I will get you back for the longer session in the coming weeks. Over to you, Kranti. Okay. So namaste. First, I like to say thanks to Vikramji and the fencing team giving me the opportunities that today I can talk to you guys. So I'm teaching yoga from last 19 years and I really saw the difference in me first and how yoga can change your attitude, how you can improve your concentration. And in the Grantha, they mentioned that Chale Vayu Chalam Chittam Nishalam Nishalam Bhave Yogi Sthanu Vapnoti Tatho Vayu Nirodhe. The sages got to know that if you control your breath, you can control your mind easily. So I'm going to give you the couple of techniques that how you can control on your breath so your concentration will improve. And even I'm writing some articles on the sports camp about how yoga is connected to the sports. So I wrote so far 11 articles. So if you get a chance also, maybe I can just forward the link to Vikram and maybe you can just go through with my articles also. So guys, I'm so glad that I'm going to share my experience to all of you within coming the sessions when Vikram will organize. And we'll just do a practice. And once you start doing the practice, you will understand why breath is so important and how through breath you can improve your concentration. So see you soon. Namaste. Thank you very much, Kranti. So brief and crisp. Definitely we look forward. I will take these links from you. I will share with all of them and I'll compile their questions, what all they have, and I'll put it to you so that you can brief them accordingly. Yeah, thanks Vikram, and I'll leave you guys and I'll see you soon on Zoom. We'll do a couple of sessions. Let's see. Let's practice on. Okay, guys. Bye. Thank you. Enjoy your Thank you very much for your valuable time. Thank you very much. Yeah. Coach, do we have Mr. Papature with us? Because he's just sent me a message. He's logging and there is some internet problem in his end. I can see 4 iPhones now. Is he there? There's a 4 iPhone, but I don't know which one is him. Krishanji? Not reached yet? There is a 4 iPhone which is there, sir. I don't know. He will come with a proper picture. Okay. He's live, in fact. He's trying. He just sent me message. There is some internet problem as it end, because you can understand there are a lot of internet issues all over the world now. Everybody is doing everything through internet. I saw him. He was online around 9:45. Yes, he's there. He's there. He's there. Krishanji, he's there. I'll unmute him. Do you hear me? Yeah. Thank you very much, Mr. Papature. It's a great honor for me to have you on the show. And let me tell you, complete India is excited to have you here. I cannot say more about you. You are wonderful. And I hope after this session, you make up your mind and we can talk to get you in India. Over to you, sir. I'm good. And you? What about you? All great. We have got around 300 people listening to you. Good. I'm really glad about your invitation, and I would like to first of all wish that everyone will be safe about this pandemic that stopped all the world. And I'm really happy to join this discussion about fencing. Thank you very much, sir. And in fact, as your time is very precious, I know you are very committed. We would request you on the behalf of complete fencing fraternity, if you can spend some time in coming weeks to tell us something about the coach's development, and you can tell us something about the fencing, especially in Sabre. So we will plan your session accordingly. We just wanted, as the reference a discussion, we have offered you an invitation that if you find fit as per your terms,
we will get you introduced to the Sports Authority of India. They are also watching us here currently. And Okay. what all terms and conditions you given us, sir, I will put it across to them. And if a coach Okay. of your repute can come to India, it will do wonder to us. And That will be, yeah. yeah, Go please, ahead, please, go ahead. please. Yeah, that will be good. That will be good because I'm a FIU referee and I already make 3 Olympic Games. And I work already in FIU school. You know, the FIU school was built to teach the coaches. Like after 2 years spending in the FIU school, you will have your certificate as a coach, you know. yes. So as a coach for a fencer, but as a coach for a coach also, like expert. And I have Great. been already in many countries to lead some session for the coaches, to make some development for the coaches and for the referees. Oh, So that will be my honor to do sir, do we that will work. be definitely getting you in touch with Sports Authority of India after this gesture, and we will try and work out the things. My only request to you, sir, if in future in next, our program is till 15th May. If you can take 20-30 minutes to address our coaches that how should they conduct the training on basics, it will be a great for us in future if you have a time. I will do my best because as you can see, I'm also working in some project about some FIE project for the referees. So I will do my best. I will do my best. Thank you, sir. I will stay in touch with you on WhatsApp, sir. As your time is precious. If you want to log out, it is your will. If you want to listen to us, it is your will. Thank you very much. I'll get in touch with you again, I sir. appreciate it. Thank you so much. Thank you, sir. Stay safe. Thank you. Thank you, sir. Bye. You too. So, gentlemen, again, you see, this is how technology can connect us to the people. And what we promised you, we got you. And we have got another wonderful session in waiting for us. That is from Mr. Mohit Ashwani. I am very less to speak about his caliber. Only thing I can say, when I started playing, he was a coach. He was fit the way he is. He looked same. You know, when I left the game, he was coach. He always looked the way that he was 10 years then. You know, now we have, our kids have started playing game. He's still coach. He still looks same. He does 2 hours of workout every day. He lives, eats and sleeps fencing. And the people who get trained under him treats him like a god. He has got his inherited personality, which is very prominent. He's very convinced what is doing, that is good for the Indian fencing. We acknowledge that. And when I was planning this, there is no better than him who can teach us about the offensive actions in IPI. He has made it a very beautiful presentation. He discussed with me how we should go about it. He's so kind of him to give me that honor. Over to Mohit sir. I address him sir because he was my senior. And best of luck, sir. As such, you are beautifully dressed. Show is yours. Thank you. First of all, I'm in the air, sir. Such a wonderful introduction. Thank you very much, sir. I am extremely thankful to each and everyone, especially Fencing Association of India, my president, Rajiv Mehta, sir, Bashir Ahmed Khan, sir, Secretary General, and Dudhare, sir, and every member of the Fencing Association. I'm thankful to the DG Sai, Sandeep Pradhan, sir. I'm thankful to the Senior Executive Director, Bishnoi, sir, each and every one, my commandant, sir, and I'm also thankful to every one of you, and I pray to the God for your safety, and I request you to be at home, to be safe, and thank you very much. So today, actually, my topic is attacks in épée fencing. But before starting attacks, we must know about offensive actions. Offensive action जो हैं वो attacks उनमें आते हैं. तो offensive action एक बड़ा chapter है और attack उसका एक छोटा सा part है. तो मैं पहले clear कर दूं कि मैं offensive actions में आज attack ले रहा हूं. Basically offensive actions क्या है? Offense
is the best way to defense. This is generally said. This is a phrase कि सब आपने अपने आप को बचाना है तो दूसरे को मारो, दूसरे पे धावा बोल दो. जो ऑफेंसिव एक्शन है, one is attacks, second one is ripostes and counter ripostes, and third one is remise. और मैं तीनों दिन में एक एक ले रहा हूं. Tomorrow I am going to take ripostes and counter ripostes, क्योंकि कल डिफेंसिव एक्शंस का दिन है, पेरी रिपोस्टेस का दिन है, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट पार्ट टुमारो. और परसों रिमीज का पार्ट है और बाकी एक्शंस ऑन ब्लेड का पार्ट है, तो आई विल टेक रिमीज रिन्यूड अटैक्स एट दैट टाइम. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एपे फेंसिंग, स्पेशली अटैक्स. अटैक से पहले व्हाट इज इन एपे फेंसिंग, हाउ इज एपे फेंसिंग क्लासिफाइड? सबसे पहले नो कन्वेंशन, नो राइट ऑफ वे. अगर कोई अटैक करता है, दूसरा काउंटर अटैक करता है, सेम टाइम में हिट होता है, दोनों को लैब मिलता है. इफ somebody makes attack, the other person makes parry, and attacker makes remise, his light comes first, he'll get the point. So the fragrance of épée fencing is, épée fencing has all those actions which are not allowed in sabre, all those actions which are not allowed in épée foil. So it is combination of all fencing actions. ये épée fencing का fragrance है, खुशबू है. और इसके साथ साथ जो आज का दूसरा जो इसका जो पार्ट है, दैट इज टारगेट एरिया इन épée फेंसिंग. टारगेट एरिया épée फेंसिंग में सबसे बड़ा है, फ्रॉम हेड टू टो. कल अशोक सर ने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया, नी नॉट टू एक्सप्लेन इट अगेन. बट मैं बताना चाहता हूं कुछ एडवांस टारगेट्स हैं, कुछ बेसिक टारगेट्स है. बेसिक टारगेट वो होते हैं जो टारगेट एरिया लाइक इन सेबर में ट्रंक पोर्शन है, फॉइल में ट्रंक पोर्शन है. दिस इज बेसिक टारगेट. और एडवांस टारगेट वो होते हैं जो बॉडी में आगे की तरफ होते हैं. इसका आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. And third thing in épée fencing is timing between two hits. दो हिट्स के बीच का टाइमिंग, और दो हिट्स के बीच का टाइमिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है épée फेंसिंग में. अगर आप 20th पार्ट ऑफ अ सेकेंड में हिट करते हैं अपोनेंट को, देन ओनली योर लाइट विल इंडिकेट. 20th पार्ट ऑफ अ सेकेंड में तब आपकी लाइट साइमल्टेनियस आएगी, चाहे वो अटैक में करे चाहे वो डिफेंस में करे. अगर 20th पार्ट ऑफ अ सेकेंड को छोड़ के 0.20th पार्ट ऑफ अ सेकेंड में हिट करते हैं आप, तो आपका लैंप नहीं आएगा, सिंगल लैंप आएगा. तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अटैक्स इन épée फेंसिंग. Now, attack in épée fencing. Definition: initial offensive action made by extending the sword arm, continuously threatening the valid target of the opponent with the point. क्या है अटैक? अटैक इनिशियल ऑफेंसिव एक्शन है, लगातार आगे बढ़ते हुए अपने ओपोनेंट को हिट करते रहना, कंटिन्यूसली थ्रेट करते रहना उसको हिट करने के लिए, और तब तक करते रहना जब तक कि वैलिड टारगेट पे हिट नहीं करते. épée is a thrusting weapon and the hits are made with the point and the point only. épée जो है that is a thrusting weapon. इसमें आपको पॉइंट से पहुंचना होता है. फर्स्ट मतलब you have to reach with the point. It has been explained by Krishnan sir. It has been explained by Sagar sir also. So you have to reach to the with the point and the point only. सिर्फ पॉइंट से ही पहुंचना है, और कोई आपको किसी और तरीके से हिट पॉइंट नहीं मिलेगा. अब épée fencing is classified in two parts according to the attacking actions. One is simple attacks, one is compound attack. अभी पहले जो फर्स्ट ब्रेक है, फर्स्ट हाफ है, वो हम सिंपल अटैक्स लेंगे. उसके बाद आई विल हैंड ओवर दिस सेशन टू जामल सर. ही विल टेक क्वेश्चन आंसर्स एंड देन वी विल गो फॉर कंपाउंड अटैक्स. बीच में जो मैं आपको वीडियोस जो आएंगे वो मैं आपको अभी कोशिश कर रहा हूं कि फेसबुक पे भी सेंड कर रहा हूं, ताकि आप उसको, अगर ये यहां नहीं चलते तो फेसबुक पे आप उसको शेयर कर लें. सो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट, इट विल बी शोन ऑन I will send you the links also, and WhatsApp में भी, हमारे ग्रुप में भी मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, so that you are able to share it or you can watch it, download it and watch it. और इसके अलावा YouTube में भी मैं बना के इसका और आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और today itself it will be reaching to you. So we are going to take first simple attacks. Simple attacks की definition क्या है? A simple attack is an offensive action consisting of
only one fencing time executed with a launch or a flush. Simple action क्या है? एक offensive action है which is made in one fencing time. अब one fencing time है क्या है? One fencing time वो fencing time है जो एक फेंसर लेता है एक सिंपल हिट को कंप्लीट करने में. सागर सर ने 3 दिन पहले आपको समझाया था कि सिंपल अटैक्स क्या है, उन्होंने क्लैप करके समझाया था. मैं आपको और एक और एग्जांपल दे देता हूं कि सिंपल अटैक वो अटैक होता है जब आप अपने हाथ को सीधा कर देते हो. व्हेन यू स्ट्रेटन योर हैंड इज कॉल्ड सिंपल अटैक. चाहे वो आप बिल्कुल सीधा जाके हिट कर दो, चाहे आपका ओपोनेंट ब्लेड पकड़ने के लिए आए और आप लाइन चेंज करके हिट कर दो, पर सीधा हिट कर जाना है. और जैसे आपका हाथ खुल जाता है सिंपल अटैक फिनिश हो जाता है. आप हाथ खोल के लॉन्चिंग ऑफ लॉन्च या फ्लच कर देते हो तो सिंपल अटैक खत्म हो जाता है. उसके अलावा अगर आप एक सिंपल अटैक करते हो और आपका ओपोनेंट उसको पैरी कर लेता है और आप लाइन चेंज करके हिट करते हो तो वो सिंपल अटैक नहीं रहता, वो कंपाउंड अटैक हो जाता है. दैट बिकम्स कंपाउंड अटैक. When you open the hand, your opponent makes a parry, you change the line and hit, it becomes a compound attack. Simple attack is classified in 3 parts. One is straight hit, other one is disengagement hit, and third one is cutover. ये तीनों जो क्लासिफिकेशंस हैं ये तीनों बॉडी पे भी कर सकते हैं. ये तीनों एडवांस है. आपका हैंड हो गया, आपकी एल्बो हो गई, आपकी थाई हो गई, आपका जो फ्रंट फुट है वो हो गया. तो ये सब एडवांस टारगेट्स में आते हैं. और बॉडी वो होती है जहां पर आप शरीर के ऊपर हिट खाते हैं, जैसे आपकी चेस्ट हो गई, फ्लांक हो गई, एब्डामन हो गया, मास्क हो गया, ये बॉडी होती है. अब सिंपल अटैक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से पार्ट हैं बॉडी के जहां पर कि जिसको कि हम एडवांस पार्ट्स बोलते हैं और जिसको कि हम डिवाइड कर सकते हैं भागों में. आइए देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप क्लैरिफाई होगा कि आप कौन से पार्ट एडवांस टारगेट पार्ट में आते हैं, कौन से पार्ट टारगेट अलग अलग बैक पार्ट में आते हैं. फेंसिंग में खासकर फेंसिंग में 3 तरह के टारगेट होते हैं. सबसे पहले वो टारगेट होता है जो सबसे नियरेस्ट टू ओपोनेंट होता है. हमारा जो प्रतिद्वंदी होता है, जो हमारा ओपोनेंट होता है, जो टारगेट सबसे नजदीक होता है वो टारगेट नंबर हम 1 बोलते हैं. वो 2 टारगेट है हमारे, एक तो है रिस्क और दूसरा है टारगेट है नियरेस्ट टू ओपोनेंट. These 2 targets, one is wrist and one is foot, it is nearest to the opponent, so this is called target number 1. इसको हम फर्स्ट कैटेगरी में मानते हैं. सेकंड कम्स एल्बो एंड थाई. जो हमारी एल्बो है और वो थाई है, दोनों ही एक लाइन में. बोथ आर इन द सेम लाइन. अगर हमारा जो फेंसर है वो थोड़ा सा हेड आगे कर देता है तो उसका एल्बो एंड थाई तीनों एक लाइन में हो जाते हैं. तो ये आ गया सेकंड नंबर का डिस्टेंस. और अगर वो सीधा खड़ा होता है तो ये फिर पीछे चला जाता है. अदरवाइज एल्बो और जो थाई है ये नंबर 2 पे है टारगेट एरिया. और थर्ड नंबर पे जो टारगेट एरिया आता है वो है फ्रंट पोर्शन, रेयर थाई, रेयर हैंड एंड मास्क इफ द फेंसर इज स्टैंडिंग हियर. अगर वो स्ट्रेट खड़ा है तो वो मास्क कर रहा है. इन 3 टारगेट के हिसाब से हम फेंसर को हिट करवाते हैं. लेकिन जो सबसे नियरेस्ट टू ओपोनेंट होता है उसका सबसे बड़ा, चाहे नियरेस्ट होने का डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि ये सबसे ज्यादा मूवेबल है. These 2 targets, the wrist and foot, are the most movable targets. Elbow and thigh are less movable than wrist and foot. And third one is the trunk portion, mask and rear foot. ये सबसे कम मूव करते हैं, whereas सबसे ज्यादा हैंड फुट मूव करता है. तो जहां इसके ओपोनेंट के नजदीक होने के एडवांटेज है, वहां इसके जो है मूव होने के डिसएडवांटेजेस भी हैं ओपोनेंट के लिए. तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि हम इन 3 टारगेट के ऊपर सिंपल अटैक्स और कंपाउंड अटैक्स कैसे करेंगे. आइए देखते हैं. अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो पता लग गया कि टारगेट एरिया कौन कौन से हैं. अब इन टारगेट एरियाज पे पहले हिट करवाने से या अटैक स्ट्रेट अवे करवाने से पहले इट इज बेटर टू
start with the proper warm-up. Proper warm-up is very important. How to conduct warm-up, how to receive hit with the point, how a fencer goes back when coach comes forward to deliver hit, when opponent comes forward to deliver hit. Now we'll see this in our next slide. And this particular video is of Daniel Levalavasa, a French master who is himself an Olympic champion and a world champion and had produced many Olympic and world champions. Please see. Voilà, je contrôle, je suis le coach, je contrôle, voilà, voilà, je regarde que l'épaule est bien relâchée, je lâche. He is mentioning in this particular video that when the fencer comes to hit, his shoulder, thigh, body has to be relaxed, and he's speaking in French, but then also his body language is explaining everything. Please see. Voilà, c'est ça la correction. Je contrôle, bien, va bien, je ne veux pas voir ceci. Never. Je suis là. Et voilà, regarde, voilà. Voilà, là je pose. Voilà. 1, 2, 3, 4. Quand vous faites 3, never, 4. That's it, okay? Le rythme encore, c'est la compétition. La touche, c'est ça. Si la boîte est là-bas, protection, là. Always. Hein? Always. Always ici. Là. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, j'attaque. Là. 1, je marche. 2, 3. Ça. Ok. Très important pour avoir la coordination. Après, c'est bien réussi. Très facile pour la suite. Après, vous allez voir. Allez, on répète encore une fois et après on va changer. Ok. Allez. जहां पर हमने ये देखा कि वार्म अप कैसे करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी पॉइंट की। एपे फेंसिंग में पॉइंट बहुत वैल्यू में है, क्योंकि पॉइंट ही अटैक है, पॉइंट ही डिफेंस है, पॉइंट ही सब कुछ है एपे फेंसिंग में। इफ यू मूव योर पॉइंट हियर एंड देयर, यू विल नेवर रीच टू द टारगेट। So you have to be very particular about the point. Point has to go straight, point has to come back, point has to move, and point has to do everything. So point plays a very important role. Now, ये तो हमने सीख लिया कि कैसे वार्म अप कराते हैं, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये हम देखेंगे कि हाउ टू रिसीव हिट्स बाय अ कोच। एक प्लेयर तो हिट कैसे करता है उसको पता है, लेकिन कोच के होने के नाते, जैसे फॉर एग्जांपल हम सब घर में हैं, आइसोलेटेड हैं, और ब्रदर एंड सिस्टर दोनों एपे खेलते हैं, दे बोथ ऑफ देम दे प्ले एपे, दे मस्ट वियर प्रॉपर किट, must wear protective jacket, and they can also do some of the partner exercises, but proper kit is required first, and they must know which signal they have to give to receive the hit on chest, which signal they have to give to receive the hit on arm, which signal they have to give to receive the wrist on hit on wrist and thigh, so on and so on. Now let us see in this video how we can receive the hits on various part of the targets as far as coach perspective is concerned. करवाता है, जो चेस्ट पे करवाता है, फोरआर्म पे करवाता है, अलग-अलग सिग्नल यूज करने होते हैं, और अगर वो सिग्नल्स करेक्ट होंगे तभी प्यूपल से करेक्ट हिट हो, अगर वो सिग्नल गलत होंगे तो प्यूपल हिट करने में उसको डिफिकल्टी आए। तो हाउ अ कोच कैन यूज सिग्नल्स टू रिसीव हिट्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द टारगेट। नाउ लेट अस सी। चेस्ट पे हिट करने के लिए कोच को हल्का सा आर्म को विड्रॉ करना होता है नीचे की तरफ, और प्यूपल को इशारा करना होता है हिट करने। और अगर आर्म पे
पे हिट करवाना है तो कोच को आर्म हल्की सी आगे एक्सटेंड करनी होती है। अगर यही हिट कोच को रिस्ट पे करवाना होता है तो कोच को हल्का सा रिस्ट बेंड करना होता है नीचे की तरफ और पिंपल को हिट करने के लिए हो गए। और यही अगर कोच पे हिट करवाना होता है तो कोच हल्का सा पॉइंट ऊपर ले लेता है ताकि पिंपल कोच पे हिट कर हो गए। इन सिग्नल्स को यूज करके कोच डिफरेंट जगह पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे हिट करवा सकता है। Now comes our first technique in simple attacks, that is direct thrust. Direct thrust क्या है? Direct thrust जो है, it is a straight movement from the line of engagement to the target area. कहीं भी line change नहीं करनी है, you have to go straight and hit the target area. अब आप देखेंगे इस direct thrust में कोच जो है वो लाइन ओपन करता है और ऊपर उसी लाइन में हिट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो फोरआर्म हो, चाहे वो रिस्ट हो। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने हिट करना है और उन पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। डायरेक्ट थ्रस्ट या स्ट्रेट हिट, कई बुक्स में स्ट्रेट हिट लगा है, कई बुक में डायरेक्ट थ्रस्ट लिखा है और मतलब एक ही है, हाथ सीधा करके हिट करना है। यू हैव टू स्ट्रेट द हैंड एंड हिट ऑन द वेरी पार्ट ऑफ द टारगेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 भाग में डिवाइड किया गया है टारगेट एरिया को, फर्स्ट है रिस्ट एंड फुट, then elbow and thigh, and third is chest, mask and the other parts of the body. और इन तीनों में जब हम हिट करते हैं तो हम उल्टा शुरू करते हैं। सबसे पहले वाइडर पार्ट के ऊपर करते हैं, then comes elbow and then comes wrist। और आइए देखते हैं हम डायरेक्ट हिट कैसे करने हैं। अभी आपने देखा कि ना ही केवल डायरेक्ट हिट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, डायरेक्ट हिट हम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम डिसएंगेजमेंट, जो नेक्स्ट जो हमारी जो साइट है डिसएंगेजमेंट हिट, वो हम कर सकते हैं। डिसएंगेजमेंट हिट क्या होती है? डिसएंगेजमेंट व्हेन यू चेंज द लाइन ऑफ एंगेजमेंट एंड यू हिट ऑन द अदर लाइन इज कॉल्ड डिसएंगेजमेंट हिट। डिसएंगेजमेंट जो होती है ये फ्रॉम एंगेजमेंट भी हो सकती है, और कईयों को, कई फेंसर्स में या कोचेस को डाउट होता है ये सर ये तो एंगेजमेंट में होती है। नहीं, यू कैन डू इट विदाउट एंगेजमेंट ऑल्सो। आपको ब्लेड को इवन एंगेज करने की भी जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट अलोन कैन नॉट हैपन, सीधी सी बात है। जब तक आपका ओपोनेंट आपका ब्लेड नहीं पकड़ेगा डिसएंगेजमेंट नहीं होगी। और एक और आपको सीक्रेट बताता हूं डिसएंगेजमेंट का, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है डिसएंगेजमेंट जब करनी है तो हमेशा ब्लेड नीचे से निकलता है। फॉर एग्जांपल आप अगर सिंपल क्वाड करते हैं तो डिसएंगेजमेंट ब्लेड नीचे से निकलता है, सर्कुलर 6 करते हैं तो डिसएंगेजमेंट ब्लेड नीचे से निकलता है। वेयर एज अगर यही लोअर पोर्शन में होता है तो ये ऊपर से निकलता है, ये देखिए ये ऊपर से निकलता है, डिसएंगेजमेंट ऊपर से होता है ये। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में डिसएंगेजमेंट हमेशा नीचे से होता है, पर तब होता है जब ओपोनेंट पकड़ता है, नहीं तो वो सिंपल अटैक माना जाएगा। आइए डिसएंगेजमेंट ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे करते हैं। और डिसएंगेजमेंट हिट करने के टाइम में हम लोग 9 केवल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी करेंगे, वही तीनों टारगेट्स पे, बल्कि फुट पे भी हिट करेंगे। आइए देखिए। सर आप जो वीडियो में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अगर आप बोलते भी जाएंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से डिगेजमेंट करके ये दोनों साइड पे रिस्ट पे हिट कर रहा है। अब इसी तरह से हम फुट पे भी करवा सकते हैं, जैसे लाइन ओपन करके नीचे एंड देन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो इस तरह से ये हमने डिसएंगेजमेंट देखा। अब इसी तरह से हम कट ओवर भी कर सकते हैं ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन कट ओवर है क्या? कट ओवर जब हम पॉइंट के, ओपोनेंट के ब्लेड के पॉइंट से हम ब्लेड निकाल के हिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कट ओवर। कट ओवर
और हैरानी की बात यह है कि इसको हम बोलते तो कट ओवर है, लेकिन जब लो लाइन में होते हैं तो हम नीचे कट करते हैं। जिस तरह से डिसएंगेजमेंट में हम ऊपर हिट करने के टाइम में नीचे से ब्लेड निकालते थे, इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें कट ओवर में हम ऊपर ब्लेड ऊपर से निकालते हैं ऊपर के पॉइंट्स पे हिट करने के लिए, और नीचे के ब्लेड नीचे से निकालते हैं, नीचे से ओपोनेंट के ब्लेड के नीचे से कट ओवर्स करते हैं, और ऊपर से ऊपर की तरफ करते हैं। लेकिन सभी कोचेस के लिए, सभी फेंसर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जब कभी भी आप कट ओवर करते हो, whenever you go for cut over, never open your wrist, because this is the most dangerous action. You understand now what is the dangerous thing? You make this cut over with the wrist and you receive the hit underneath. Very, very common action. Now how you can make, you can break your wrist down like this, and then you can make it like this, so that when your opponent comes, you hit him first. So like this. Don't make it wrist upwards, break the wrist and perform it like this. And don't take only the hand part of the full arm goes up, full arm goes up. Now see how the fencer performs. You see. हाई लाइन में भी और लो लाइन में भी, आइए देखते हैं कैसे। सर प्लीज बोलते रहिए, जो वीडियो में बोल रहे हैं वॉइस क्लियर हो जाएगी। ये कट ओवर देखिए आप फोर आर्म के ऊपर, ये देखिए ये किस तरह से फेंसर कट ओवर रिसीव करता है और कोच कट ओवर रिसीव करता है फेंसर का। नाउ ऑन अगेन फोर आर्म एंड गो बैक। आई हैव शोन बोथ द एक्शंस विद एंड विदाउट काउंटर अटैक एक्शंस। ये लो लाइन कट ओवर और हाई लाइन हिट। Now you can see again forearm. Now on foot you can make this action. Okay. Now now I request Vikram sir that you can take question and answer, then I'll proceed for compound attacks. Thank you, Mohit ji. It was a wonderful explanation. You can see the things in chat box, how people are responding to your explanation. The first question, I will address two questions to you only. First question by said ki what is the difference between stop hit and time hit? Time hit is a part of stop hit. Okay. It is, one is hit with opposition and one is hit without opposition. जो stop hit के दो parts हैं, hit with opposition, hit without opposition. This is hit without opposition. With opposition is called time hit. Okay. Now second thing, second question is asked ki what is the importance of low line and high line in the fencing? It is a tactical or it is a technical? Can you elaborate on that? How fencers should practice with both lines? Can you elaborate on? First of all, it is very easy to work on both lines. Second thing is both lines are important in épée fencing, because both, any line, either mask also is important, because wherever you get a hit is important. And for example, if your opponent is leaning more down, then you have more chance to hit on his lower part of the body. But if he's standing erect, he's not giving chance to go down, and he's making all movements of hand very fast, then you can provoke and go for upper part of the feint on the upper part of the target and go for the down. Then there are a lot of things. But both action, both high line as well as low line, both are important. And one secret I tell you, which I experienced in my life for so many years, épée fencing में अगर आप किसी फेंसर के फुट पे हिट कर देते हो, इन पूल 70% जो है वो बाउट हार जाता है. Okay. दिस इज सीक्रेट. क्यों? और जितना भी अच्छा फेंसर होगा उसका पैर उसके लिए उसकी जान होता है, इस लाइफ फॉर हिम. और अगर उसके पैर पे हिट कर दे, उसको थप्पड़ जैसे मुंह पे लगता है ना उसके, इट्स जस्ट लाइक स्लैपिंग ऑन हिज फेस एंड ही इज सो शेमफुल. वो मुंह नीचे करके जाता है उसके बाद, या जाती है. सभी फेंसर्स को पता है, ऑल épée फेंसर्स नो दिस. सो अगर कोचेस जब ट्रेनिंग करवाते हैं, सिचुएशन देते हैं, तो मैं कहता हूं जब सिचुएशन जब
टारगेट एरियाज की इंपॉर्टेंस डिवाइड करते हैं तो 5 नंबर पैर को देने चाहिए कि 5 points will be given to foot if you hit on the foot in 5 touch target single line. Please. Such a wonderful secret. No, मैं थोड़ा सा lighter, in the lighter mood I said कि I think IP is the only thing in the world or Indian culture जिसमें अगर आप पैरों पे मारोगे या पैरों को हाथ लगाओगे तो IP fencer doesn't like. Generally पैरों पे हाथ लगाना हमारे culture में it is lot of blessings. ठीक है. Other question is that very simple कि अगर आपने because you have been yourself into IP fencing and you have been a coach. Can you tell me what is the ratio of the points EP fencer should practice more? कि हाथ में 70% point मिलते हैं, mask में. Is there some data on that where the maximum point one can hit? When I was studying in Hungarian university, Hungarian Semmelweis University, luckily I was also part of that that particular you can say Committee. Of the data collecting. We used to sit during the inter-universities and we used to count how many hits were made on chest, how many, especially in pentathlon, modern pentathlon, how many hits were made on chest, how many, and you will be surprised to know everyone that 80 to 80% of hits are made on chest. Okay. Other hits are very less. 2 to 3% on hand, 1 to 2% on foot, but 80 to 85% on head, 2 to 3% on mask, 2 to 1 to 2% on chest. So you will from here you can analyze which part is more important. Okay, sir, the last question for you. After that, I've got 2-3 questions for referees. I can request host to unmute Deepak and Rashid and Lohit if possible. First, last question. What are the possibilities of defense in IP fencing? This is a question from fencer from Assam. Possibilities of defense of your own understanding, there is no attack. Okay. In my opinion, and what I have studied, at the initial stage, fencer is of 14, 15, 16 years old. He is more secure. He is more, not secure of making parries. He makes more hand straight and counter attack. As he grows with the fencing, he makes more parry ripostes, remise attacks. Then at the early age, he finds more security only extending the arm. Okay. Touching the hit first on the attack. Okay. Thank you, sir. We'll come back to you, Mohitji, again. I keep requesting all opponents to keep writing your question. No question is for Deepak, EP referee. Deepak, can you hear me? Yes, sir. Welcome you. You have been a silent listener for so long. Now it is your day, your week. Tell me, there is a question from Mr. Mukesh from Bihar. He is a former very good fencer. Sir. He tells me that what is the, suppose two fencers are playing. Yes, sir. दो फेंसर खेल रहे हैं. फेंसर A ने भी हिट मारी, फेंसर B ने भी हिट मारी. Timing of the hit is same. Both gets a light. जी. You give a point to both the players, but the side referee comes and tells you कि फेंसर B की हिट थी पहली ग्राउंड पे थी and then it came on the target. Right, sir. In that situation, what is your decision? उस situation में आप क्या करेंगे? सर मैं साइड रेफरी, मेरा जो को रेफरी होगा, साइड रेफरी होगा, मैं उसके पॉइंट से एग्री होऊंगा एंड जो फेंसर बी है उसका हिट एनाल करके फेंसर ए को हिट अवॉर्ड करूंगा सर. Okay. What is the penalty when a fencer crosses the lateral boundary of the piste with 1 foot? This is a question from Bangladesh. If Rashid can answer that. Thank you, Vikram. अगर फेंसर 1 फुट से बाहर जाता है तो वो पेनल्टी नहीं है, क्योंकि दोनों पांव से ही जब फेंसर जो है वो बाहर जाता है तो तभी उस कंडीशन में ही हिट को जो है वो नाल किया जाता है. Okay. In case both the legs have to go out, then only it will be annulled. Otherwise, it will not be annulled. Yes. 1 point. Yes. In fact, अगर थोड़ा सा toe 1 minute is also on the line, front foot का, Yes. so the point will not be annulled. Even if हवा में भी पाँव है और जब वो लैंड करता है वो लाइन के ऊपर उसका जो टो है वो लैंड करता है, it is also valid. Okay. Another question if for Deepak, it is specifically for you, Deepak, if you are there. The question goes that in IP fencing,
Again, the question of the passivity is coming again and again. I just want to tell you, if you can tell them about the passivity in 10 seconds, because your class is there in last Saturday, I suppose. So we will be explaining passivity. But people are very curious. They said कि passivity पे अगर 10 सेकंड के लिए if you can tell. दीपक. सर पैसिविटी पहले हम इसे बोलते थे नॉन कॉम्पिटिविटी, बट नाउ अब इसका नाम चेंज होके हो गया है अनविलिंगनेस टू फाइट एंड इसमें कुछ रूल्स चेंज हुए हैं सर। मैं चाहूंगा कि जब मेरा लेक्चर है तो मैंने इस पे मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकूंगा और मैं जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ एंड उस पे मैंने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया भी है इसे। तो मैं चाहूंगा कि जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन है मैं उस दिन इसके ऊपर अगर बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो ज्यादा वाइड रहेगा और बहुत एक्सप्लेन रहेगा। Thank you, Deepak. Thank you very much for these two people. Before we come to the proper, जो इपी की पैसिविटी को लेके जो ये सवाल उठाया जा रहा है, अदर देन टेक्निकल थिंग के पीछे, इसके पीछे जो बिजनेस कंसेप्ट है उसके बारे में मुझे थोड़े दिनों पहले कुछ पता चला था कि why this rule of passivity has come suddenly into the fencing. There was a FI Congress in Geneva last to last year, where it was decided ki how to make fencing, especially ippy fencing, more interesting. They say this ESPN or some Star Sports, some kind of a media house said ki when this particular bout come, and because people used to take a lot of time to play earlier, ki in one bout sometime they used to take 4 all bout of 15. So they said ki because there is no, people are not playing dominatingly, hence people are not watching this sport. जब लोग गेम नहीं देखेंगे तो टीवी चैनल्स के मीडिया राइट्स वाले इसको लेने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि देयर टीआरपीज वर कमिंग डाउन. So the business heads of the FEI, they sat together and they decided कि in order to make this game interesting, we need to get something so that people keep playing. क्योंकि लोग तो देखने के लिए देखते हैं ना. It's something like cricket is somebody winning test match slow you said कि यार बाद में देखते हैं rather than 2020. This is one of the business concept why rule of passivity has been invoked so strictly. This is my knowledge from my exposure. It may be correct, it may not be correct, but if I am the FI head and if I am looking for media participation, this is a very good step taken by the this thing. Another wonderful, we have got many people joined with us. I have got a very old friend, Suraj Naveen from Hyderabad, 2005 silver medalist. We played one international together. Suraj, welcome back, and good that you are still associated with fencing. We have got Dr. Bhushan from Maharashtra, one of the very silent coach who has been working very, very nicely in Maharashtra. Kudos to you, you also come. We have got one of the best young coaches with us, Roshan Thapa. We have got with us Tukaram. We have got with us Shriya. These all people, they are coming and making us feel proud. And your participation is just amazing. I just wanted to take name of KP Singh also. KP Singh was also one of the most passionate coach. He is also watching. Welcome to you, KP also. I again wanted to convey my sincere thanks to Sonia from Punjab and Suman from UP. And there is one guy, Vishal, who always wear mask when he watches this. I hope he may be in somewhere outside. I appreciate your concerns, and Sonia and Suman for making the notes. We have got a Dinah Thingujom joining us after the end of the session today for her comments on the coaching and fencing. Dinah, be prepared for that. And in the end, I would like to thank Mr. Jijonidhi, a coach from Kerala. He has been participating a lot. He has been sending a lot of videos. He sleeps, eats, and drinks fencing. God bless. Keep asking your questions, and we will answer that. Over to you, Mohit sir, again. Thank you. Thank you very much. Now comes we go to the compound attacks. As mentioned earlier, fencing में दो तरह के attacks होते हैं, simple attacks and compound attacks. Now compound attack, definition of compound attack. The attack is compound when it receives one or several parries provoked by one or several feints.
अब सबसे पहले फेंट वर्ड आता है और उसके साथ आता है व्हेन इट डिसीव्स। जब हम ओपोनेंट, फेंट किसको बोलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो फेंट है, तो मैं पहले समझा देता हूं। फेंट इज अ थ्रेट टू द ओपन पार्ट ऑफ द टारगेट। कहा है कि खुले हिस्से पे थ्रेट होता है, फेंट है जो जिसकी वजह से ओपोनेंट को प्रोवोक किया जाता है कि वो पेरी करे, ही गोज फॉर पेरी। द मोमेंट ही गोज फॉर पेरी, फेंसर चेंज द लाइन, हिट ऑन द पार्ट, दैट पार्ट ऑफ टारगेट which he opens to close the other part. This is what feint attack is. अब कंपाउंड अटैक जो है वो भी जो है 3 तरह हिस्सों में ही डिवाइड किया जा सकता है, सिंगल फेंट, डबल फेंट और मल्टीपल फेंट। बट एपे फेंसिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं, डोंट गो फॉर डबल फेंट और ट्रिपल फेंट और एनी अदर फेंट। एक फेंट अगर ओपोनेंट पेरी कर दे, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ। यस, डोंट गो फॉर 2 फेंट्स, अदरवाइज यू विल कमिट suicide. This is what clearly we say. If you go for 2 feints, definitely you will receive a counter attack, and ensure that it will be first. Now comes classification according to the opponent's anticipated reaction. Feint of an attack varies in their technical execution and are classified into several categories. अब ये अपने आप नहीं डिसाइड किया, ये डिसाइड किया ओपोनेंट के एंटिसिपेटेड रिएक्शन की तरफ, क्या क्या रिएक्शन वो करता है उसके बिहाफ के ऊपर ये फेंट डिसाइड हुए हैं। अपने आप पे नहीं हम डिसाइड कर सकते कि वो ये करेगा तो मुझे ये करना, वो ये करेगा तो मुझे ये करना। तो कैसे कैसे होता है? फेंट ऑफ द सिंपल अटैक, द फेंट ऑफ द कंपाउंड अटैक, द फास्ट फेंट, द कंबाइंड फेंट, फेंट विद द फुट रेज एंड फ्लिक फेंट। ये 6 तरह के फेंट होते हैं जिनको कि हम डिफरेंशिएट करते हैं ओपोनेंट के एंटीसिपेशन पे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप फेंट करते हैं या फेंट के बारे में बोलते हैं, तो फेंट जो है वो ओपोनेंट 3 फैक्टर्स के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स इफेक्ट फेंट। ये हम मैं जब NIS पटियाला में था तो ये चैप्टर था, 1 हफ्ता लगता था, बट मैंने उसको थोड़ा श्रिंक कर दिया, बहुत श्रिंक किया है। उसमें 3 फैक्टर्स हैं मेनली जो इफेक्ट करते हैं। 1 इज हाउ डीप यू गो फॉर फेंट, पहला। सेकंड, पेरी। थर्ड कम्स विच पेरी, कौन सी पेरी, क्वाड पेरी, 6 पेरी, सर्कुलर और डायगोनल, और विच पेरी, एंड हाउ मेनी पेरीज, कितनी पेरी। ये फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं फेंट के ऊपर। और सबसे ज्यादा जो है आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जितने भी फेंट हो लास्ट में एक फाइनल हिट होना ही होना है जो कि आपको पॉइंट दिलाएगा। दिस इज फैक्टर्स इफेक्टिंग फेंट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अटैक विद विड्रॉवल ऑफ, अटैक ऑन विड्रॉवल ऑफ आर्म। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इपी फेंसिंग में। इसको मैं चॉकलेट हिट के भी नाम से जानता हूं। कई बार क्या होता है, फेंसर फेंट करता है हाथ के ऊपर ओपोनेंट के, और ओपोनेंट हाथ खींच लेता है, फेंसर पीछे चला जाता है। दिस इज द, आई कैन से, वर्स्ट थिंग एवर हैपेंस। वो चॉकलेट पॉइंट जो वो ले सकता था, जैसे विड्रॉ किया वो कंटिन्यूसली हिट कर सकता है हाथ के ऊपर, वो खो देता है, वो चांस को मिस कर देता है। और उस टाइम पे ही लूजेस 1 अपॉर्चुनिटी विच आई कॉल अ चॉकलेट हिट। और वो लड्डू वो जो मुंह में जाने लगता है वो नीचे गिर जाता है, इट फेल्स डाउन। When opponent reacts to the feint by pulling his or her hand, go again, go straight, go and hit. Don't wait, otherwise you will lose a chance or you will lose a point, and you will be unlucky for that. Maybe next time he don't react, he may flush on your feint and you are dead. So like this, always when opponent pulls arm, उसके ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट करो। और सबसे पहली स्लाइड में इसकी दिखाने वाला हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग, फेंट जब भी कोई कोच सिखाता है या पीपल सिखाता है, खासकर नीचे, हाथ के ऊपर नीचे, ऑलवेज गो फॉर हिट, always go for hit. I stress, I emphasize on this point, always go for hit, because if you don't go for hit, opponent will make counter attack on your wrist, because he will see 2 times, and 3rd time he'll see he's only making a feint and he'll go for counter attack, and
you will receive a hit on this part. Go for a hit. It is his problem. It is defender's problem to make parry, or he makes a counter attack. He makes whatsoever action. It's you go for your. In my every compound attack, I have shown all these things. I have received hit on every compound attack. Please see. Now attack on withdrawing of arm. When opponent pulls arm, what we can do? सर अगर जो वीडियो में बोल रहे हैं बोलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा सर। हाँ जी, देखिए अब आप देखिए किस तरह से फेंसर आर्म के ऊपर शो कर रहा है, खींच रहा है। जैसे कोच ने आर्म खींचा, फेंसर कंटिन्यू करता है हिट चेस्ट के ऊपर। दिस इज विड्रॉवल ऑफ आर्म। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको अगेन एक बार और कोशिश करेंगे ये स्लाइड देखने के लिए। और सबसे पहले हम जो ट्रेन करेंगे, अगर उन्हें विड्रॉ करता है आर्म को, हम कहां आ जाते हैं, हाईलाइन और लो लाइन। ये देखिए किस तरह से हिट करता है। जैसे वो आर्म पे हिट करता है, फेंसर खींच लेता है, तो इमीडिएटली फेंसर आगे जाता है विदाउट गोइंग बैक, इमीडिएटली फॉरवर्ड, फुट के ऊपर हाई एंड लो लाइन में। So this is when opponent withdraws the arm. Now next is direct feint and disengagement hit. बड़ा ही कॉमन फेंट है। आइए देखिए कैसे फेंसर कर सकता है। डायरेक्ट फेंट के अगेंस्ट में जब ओपोनेंट पैरी करता है, सर्कुलर सिक्स या सिंपल क्वाड पैरी करता है, तो उसमें कैसे फेंसर लो करके हिट कर सकता है, चेस्ट के ऊपर या थाई के ऊपर। ये देखते हैं और कौन से टाइम पे कौन से जगह पर हिट कर सकता है, ये देखिए। देखिए किस तरह से फेंट किया और जैसे पैरी सिक्स की उसने ब्लेड पकड़ के हिट कर दिया। आप देख रहे हैं मैंने दोनों हाथ का यूज किया, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, सो दैट ये क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए फुट के ऊपर मैंने दो एक्शन इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि वन हाई लाइन में वन लो लाइन में, हाई लाइन में कैसे करना और लो लाइन में कैसे करना। नाउ नेक्स्ट इज डिसएंगेजमेंट फेंट, डिसएंगेजमेंट हिट। वेरी कॉमन एक्शन। जब फेंसर ब्लेड पकड़ने जानबूझ के ओपोनेंट ब्लेड पकड़ता है तो आप डिसएंगेजमेंट करते हैं, और जैसे आप दोबारा उसका आपका ब्लेड पकड़ने के लिए आता है ओपोनेंट, तो आप दोबारा डिसएंगेजमेंट करके हिट करते हैं। वेरी कॉमन एक्शन इन फेंसिंग। और कैसे कैसे करेंगे ये देखिए ब्लेड पकड़ने आया, जैसे ब्लेड पकड़ने आया ओपोनेंट ने ब्लेड चेंज कर दिया। दोबारा ये देखिए ब्लेड पकड़ने आया, जैसे आया ये फेंसर की जो इनिशिएटिव है वो मैंने आपको पहले बताया कि उसको हाथ पे जाना है, उसको एडवांस टारगेट पे जाना है। लेट हिम गो टू द एडवांस टारगेट एंड टच यू। उसको वो ओपोनेंट की प्रॉब्लम रहने दो, वो पेरी कब करता है, वो चाहे बिफोर करे चाहे ड्यूरिंग करे, वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर आफ्टर करेगा तो हिट खाएगा खाएगा, लेकिन अगर आप हिट नहीं करते हैं या आपका प्यूपल हिट नहीं करता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसके ऊपर काउंटर अटैक आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दो जो रिएक्शंस हैं एक टाइम पे लिए। एक रिएक्शन जो है इसका नाम है फास्ट फेंट एंड फेंट ऑन द रेज्ड फुट। जब फास्ट फेंट और रेज्ड फुट मैंने इसलिए लिया क्योंकि दो तरह के फेंसर्स के अगेंस्ट में हिट होता है। एक वो फेंसर जो बहुत अर्ली पेरी करता है, इमीडिएटली फटाफट, जैसे आपने बीट मारा या जैसे आपने हाथ आगे किया फटाफट पेरी कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट में हम फास्ट फेंट करते हैं। और फास्ट फेंट का एक छोटा सा रूल है। एक फास्ट फेंट का ये रूल है, कभी हाथ सीधा मत पूरा करना, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों? अगर आप हाथ सीधा करेंगे वो ब्लेड पकड़ लेगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, आपसे फास्ट है, इसलिए उसको फास्ट पेरी बोलते हैं। उसको 60% हाथ दो और लाइन चेंज कर दो, 60% जोर से और लाइन चेंज कर दिया, ये आप देखेंगे अभी। और दूसरी तरह का जो रेज्ड फुट उस फेंसर के अगेंस्ट होता है, टेक्निकली उस फेंसर के अगेंस्ट में करते हैं। वी डू दिस एक्शन अगेंस्ट दैट फेंसर who makes the last movement parry. Blade comes on the chest and he goes wait and last movement he makes parry. So look, you make him feel that this is going to be a real attack and you raise your foot also with the feint. और जब पैर आ जाता है सामने, वो कहता है आ गया, then he makes a parry, and the moment he makes a parry you hit him. Now see both the differences. Now we perform two different types of feint. One is feint with the raised foot and other one is fast feint. Why we are performing it one by one, so that you come to know about the difference of both the things. Let us see. ये देखिए किस तरह से फास्ट फेंट किया, 60% हाथ और फटाफट लॉन्च मार दी, पैर नहीं निकालेगा, हाथ और लॉन्च।
इसी के साथ ही अब सेकंड वाला देखिए, उसमें पैर के देखिए किस तरह से पैर ऊपर जाता है, ये देखिए पूरा पैर खोला, लास्ट मूवमेंट पे पैरी की और लास्ट मूवमेंट पे चेस्ट पे, तो दोनों का डिफरेंस जो है आपको अब पता लग गया। अब मैंने 2 स्लाइड्स और बीच में डाली हैं, क्योंकि जो एपे फेंसिंग है वो सिर्फ सिंपल अटैक से नहीं होती, वो बीट से भी होती है, वो प्रीज डिफेयर से भी होती है, और बीट से भी हम फेंट कर सकते हैं, बीट से भी हम सिंपल अटैक कर सकते हैं। क्योंकि बीट सिंपल अटैक का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसका चैप्टर अलग है, तो इसलिए मैंने सिर्फ बीट को इसमें से निकाल के आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि बीट जो है वो अटैक ऑन द ब्लेड का पार्ट है, और प्रीज डिफेयर का मैंने एक्शन लिया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी पहले आप बीट से देखिए। अब अगेन डैनियल लिवलावासा, French fencing master, will explain how you can go for beat feints. वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बीट फेंट कैसे करनी है। ये देखिए, ये बीट किया और ये हिट किया, देखिए वो भी हिट हाथ से करवा रहा है। आप नोट करिए, ये लाइन चेंज की जैसे पैरी किया, ये देखिए बीट, ये ब्लेड प्रेजेंट किया, ये उसने ऑपोजिशन किया, हिट कर दिया। ये देखिए, इस पर्टिकुलर एक्शन में लड़की ने क्या गलती की, उसने पूरा हिट नहीं किया, उसने हाथ उठा लिया डर के। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि प्यूपल के को हमेशा हिट करवाना है, ताकि लेट इट इज हेडेक ऑफ ओपोनेंट, ही मेक्स पैरी और नॉट, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, यू हैव टू गो फॉर हिट, क्योंकि ये फॉयल फेंसिंग नहीं है जी, ब्लेड पकड़ा गया जी, मेरी कन्वेंशन खत्म होगी, मेरा राइट ऑफ वे खत्म होगी। नो कन्वेंशन इन एपे फेंसिंग। एपे फेंसिंग इज कन्वेंशनलेस, no right of way, go for it and you will definitely get the result. Please see. C'est ça le plus intéressant dans le travail. Vous avez vu, c'est que je la tiens. Elle est en train de faire quelque chose, je la tiens pour le montrer qu'il n'y a rien. Slow motion. ये देखिए विड्रॉवल ऑफ आर्म पे कैसे हिट करवा दिया, विड्रॉवल ऑफ फुट पे कैसे हिट करवा दिया। ये देखिए अगेन कैसे पॉइंट ऊपर किया कोच ने, फटाफट फुट पे हिट कर दिया। इसलिए ऑल लाइंस आर इंपॉर्टेंट, हाई लाइन लो लाइन डिपेंड करता है कि कौन सी पैरी करता है ओपोनेंट। ये देखिए जैसे हाथ खींचा सीधा गई, You can see how she is making opposition. अभी इसके बाद हम opposition देखेंगे। ये देखिए जब कोच ने पैरी 6 किया, जहां पर बीट जो है अटैक ऑन द ब्लेड इंपॉर्टेंट है, उसी तरह टेकिंग ऑफ द ब्लेड एपे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब अगर हम इंपॉर्टेंस को लेके जाए तो 60% इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 100%, क्योंकि इसी से ही पॉइंट ओपोनेंट का हमें टच नहीं होता। तो इसलिए मैंने टेकिंग ऑफ द ब्लेड हिट लिए हैं। अब ये सिंपल हिट्स हैं और हर लाइन में आप ये कर सकते हैं, 6 में हिट कर सकते हैं, क्वार्ट में कर सकते हैं, ऑक्टेव में कर सकते हैं, सेप्टिव में। टेकिंग ऑफ द ब्लेड का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जो मुझे भी कई साल लगे समझने में, कि टेकिंग ऑफ द ब्लेड जो एक्शन है, इसको इंग्लिश फ्रेज है, ये इसका फ्रेंच नेम है प्रीज डिफेयर। अगर आप ये वर्ड सुना हो प्रीज डिफेयर, इसका हंगेरियन नेम है बाइंड फिलो। नाम कुछ भी हो, काम एक ही है। इंग्लिश पीपल कॉल इट टेकिंग ऑफ द ब्लेड, फ्रेंच पीपल कॉल इट प्रीज डिफेयर, हंगेरियंस कॉल इट बाइंड फिलो, लेकिन काम एक ही है, ब्लेड को पकड़ना, हिट करना, डोमिनेट इट एंड कंटिन्यू हिट फॉरवर्ड टिल द डिलीवरी ऑफ टच और टिल यू डिलीवर द टच। दिस इज कॉल्ड टेकिंग ऑफ द ब्लेड। नाउ वी विल सी हाउ यू कैन मेक सिंपल अटैक्स इन टेकिंग ऑफ द ब्लेड। और चारों लाइन में आइए देखते हैं। ये क्वार्ट में किया, पहले 6 में, ये क्वार्ट में, नाउ ऑक्टेव, ऑक्टेव
और देखिए सेप्टिम में किस तरह से प्यूपल ब्लेड लेके आएगा, ये ब्लेड हिट किया और प्यूपल ने ब्लेड उठाया और ये ऊपर लाके हिट कर दिया, ताकि किसी तरीके से भी आपको ब्लेड टच ना हो सके या फेंसर को ब्लेड टच ना हो सके ओपोनेंट का। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें फेंट अटैक या कंपाउंड अटैक के बारे में, किस तरह से पीस डिफेयर में कंपाउंड अटैक कर सकते हैं वो देखेंगे। इसमें जो मेन चीज मैंने दिखाई है कि स्टेप फॉरवर्ड में वो पीस डिफेयर करता है, और जब जैसे ही ओपोनेंट को लगता है कि ये ब्लेड टच होने वाला है, वो पेरी कर देता है, वो लाइन चेंज कर देता है। जैसे ही लाइन चेंज करता है, जो फेंसर है वो लाइन दूसरी साइड पे जाके हिट कर देता है। आइए देखिए कंपाउंड अटैक किस तरह करते हैं पीस डिफेयर एक्शंस में। देखिए क्वाड पीस डिफेयर 6 में हिट कर दिया, जैसे पीस डिफेयर किया ये कोच ने डिरोक कर दिया, ये देखिए ये अब लो लाइन पे ऑक्टेव किया, सर्कुलर ऑक्टेव किया, अब ऑक्टेव 6 इमीडिएटली ब्लेड पकड़ा और हिट कर दिया। इस तरीके से आप ये एक्शन हर लाइन में आप करवा सकते हैं। अब ये तो हो गया फेंट्स की बात। अब इन फेंट्स के बाद जब ये फेंसर आपका ये फेंट सीख लेता है तो आप उसको फेंट इन टेम्पो भी करवा सकते हैं। फेंट इन टेम्पो इज एन एक्शन मेड अगेंस्ट सेकंड इंटेंशन, जब ओपोनेंट की इंटेंशन हिट करनी नहीं है। इसमें कोच क्या कर रहा है कि वो आगे आ रहा है और प्रोवोक कर रहा है फेंसर को कि उसको हिट करे, और जैसे ही फेंसर उसको हिट करता है तो वो चाहता है कि वो उसको पैरी करके रिपोज कर दे, लेकिन फेंसर ऐसा नहीं करता। फेंसर फेंट करता है और जैसे ही ओपोनेंट पैरी करता है वो लाइन चेंज करके हिट कर देता है। इस स्लाइड में, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में जो फेंसर है वो करंट वर्ल्ड चैंपियन नैटली है। शी इज करंट वर्ल्ड चैंपियन नैटली। Okay, thank you very much. And now I request Vikram to please take over the charge. Vikram sir, please take over the charge. Thank you, Mohit ji. It's a wonderful session. Brief, to the point, easy to understand. हमारे पास बहुत से questions आ रहे हैं, पर उससे पहले I must tell you sir that हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं श्री बशीर अहमद खान सर, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पिछले 2 साल में इंडियन फेंसिंग को बदल के रख दिया है। ये सिर्फ उन्हीं की लीडरशिप का कमाल है कि हम सब इतनी चीजें कर रहे हैं। बशीर सर, ओवर टू यू। आपको लगभग 300 350 फेंसर और कोचेस सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर फेंसर्स, टेक्निकल ऑफिसर और हमारे विक्रम जामवाल जी, मिस्टर मोहित और भी यहाँ उपस्थित जो सीनियर कोचेस हैं और साई के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे पहले मैं फेंसिंग फेडरेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो परिस्थिति चल रही है पूरे विश्व में, बहुत ही खराब पोजीशन है, जो कि कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं सब लोग और सबको डर है कि क्या होगा। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं आगे क्या करेंगे। लोगों का, कईयों का रोजी रोटी पे आ गया है, जो नौकरी करते हैं वो परेशान है, मजदूर लोग परेशान हैं। उसके बावजूद इस संकट घड़ी में हम मिस्टर संदीप प्रधान, मिस्टर राजू मेहता जी और साई के अन्य जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जूम के द्वारा एक ट्रेनिंग सेशन फॉर कोचेस का रखा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फेंसिंग बहुत ही अच्छा गेम है और फेंसिंग में इतने मेडल्स हैं। हम मेहनत करेंगे तो मैं जानता हूं हर खिलाड़ी के सोते समय भी उसको उस खेल के में दिमाग में आता है। मेरे जैसे व्यक्ति को रात दिन फेंसिंग दिखता है तो खिलाड़ियों को और कोचेस को दिखता होगा।
और बड़ी खुशी की बात है जो हमारे कोचेस हैं वेरी नाइस, बहुत ही सक्षम है। अपन फॉरेन जाते हैं, फॉरेन कोच बोलते हैं, फॉरेन कोच क्या करता है, सेम मिस्टर मोहित है, कृष्ण है, सागर है, और अपना दीपक है, और विक्रम है, राशिद है, ऐसे लोहित है, बहुत सक्षम कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं हमारे। और उसके बाद जो हमारे फेंसर्स हैं, बहुत अनुशासन, हमारा एसोसिएशन के पूरे फेंसर टेक्निकल ऑफिसर वेरी, बहुत ही नाइस। मैं उसको जितनी तारीफ करूंगा उतना कम है। आप अपना बड़ा सीरियसली करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग अपने खर्चे से अब्रॉड में ट्रेनिंग लेते हैं। कई खिलाड़ी, कई फेंसर लोग गए हैं जिसका रिजल्ट भी आया है, और कई रुपए खर्चे हुए हैं जिसको ना हमें कहीं से मदद नहीं हुई इन खिलाड़ियों को, इन फेंसरों को। तो मैं उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग को भी बधाई, आप अपने बच्चों को अच्छा कर रहे हैं। और इसके साथ अभी आपको अच्छे हमारे कोचेस बताएंगे। इसके बाद हम जल्द से जल्द फिर से हम, इसके बाद जूम खत्म होने के बाद जो ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा, तो उसके बाद भी फेंसिंग फेडरेशन के द्वारा हम पूरे खिलाड़ियों के लिए एक कोचिंग सेमिनार टाइप का हम शुरू करेंगे। उसमें हम पूरा जो हमारे कोचेस हैं सब आपको स्पीच करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये जो समय है बहुत ही है, और कोरोना में मैं आप लोग को दुआ देता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, घर से बाहर कोई नहीं जाएं, और स्पेशली कोई बाहर की चीज ना खाएं, घर में खाएं, अपने माँ बाप के बीच में रहें, सब उसमें रहें। आधे घंटे में अपना हाथ धोएं, अपना नाक मुंह में हाथ ना लगाएं, और अपने वेपन को भी सैनिटाइज करके चेक करें। और अपने जहाँ भी टाइम मिलता है आपका फिजिकल और जिम अपने घर में करें आप लोग, क्योंकि ये समय बहुत ही दुखद है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। और अभी कल हमारी इंडियन ओलंपिक की मीटिंग थी, ओलंपिक जो टोक्यो में हो रहा है उसके संबंध में, प्रिपरेशन की तैयारी के संबंध में हमारे राजू मेहता जी जनरल सेक्रेटरी, हमारे बत्रा जी अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रिपरेशन कमेटी के चेयरमैन ललित भानोर जी, और मिस्टर वैश्य जी, और सीनियर ऑफिशियल 62 ऑफिशियल थे आईओ के। उन्होंने बैठ के डिस्कस किए क्या क्या करेंगे हम आगे। तो हम उसमें कैसा ट्रेनिंग करेंगे, क्या करेंगे। अभी आईओ की तरफ से भी लेटर शो हो रहे हैं कि साई अपना ट्रेनिंग सेंटर जल्द से जल्द शुरू करें। तो मैं ये चाह रहा हूँ, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। मुझे पल टू पल मुझे विक्रम जामवाल जी आपकी रिपोर्ट दे रहे हैं, बच्चे लोग अच्छा पार्टिसिपेशन। हमने कोचेस के लिए था ये सेमिनार, और टेक्निकल ऑफिसर के लिए था। तो हमें ये कहा गया कि जो टेक्निकल ऑफिसर उन्हीं को रखा जाए। बाद में हमारे राजीव मेहता जी, संदीप प्रधान जी बोले अधिक से अधिक को पार्टिसिपेशन करो, जिसमें सर्टिफिकेट कोच जो भी फेंसिंग के कोच हैं, जो टेक्निकल भी नहीं, उनको भी अपने साथ जोड़ो। और जितने खिलाड़ी है, चाहे वो जूनियर हो, मिनी हो, सब जूनियर हो, सब सीनियर, सभी फेंसर लोग को इसमें इन्वॉल्व करो, उससे कुछ सीखने ही मिलेगा। अब मुझे बड़ा खुशी है, जब तक हमारा सेशन चल रहा है उसमें बहुत 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 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अभी हम फेडरेशन ने एक हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति किए हैं, उनको अपॉइंट किए हैं, जो कि साई के साथ बराबर हम उनसे कांटेक्ट में है वो, और जो भी परेशानी होती है वो पूरा कर रहे हैं। स्पेशली मिस साई को, संदीप प्रधान जी को, राजू मेहता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण ये अच्छा मौका मिला है। पहली बार मैं कंप्यूटर में बैठ रहा हूँ, कल बैठा था, आज सेकेंड टाइम में। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हम अपने जितने, ऐसा मैं कोचेस लोग को अनुरोध करता हूँ, जो भी कोच सामने उनसे अनुरोध करता हूँ एक जूम टीम बना लें अपने इंटरनेशनल कोचेस की, जो कि हम 2020, 24, 28 के लिए जो आउटस्टैंडिंग फेंसर हैं उनको अभी से चिन्हित करके, उन्हें सेलेक्ट करके, उनसे एक टाइम बांध के उनसे जूम के जरिए उनको ट्रेनिंग दें, अपना मार्गदर्शन दें, उनको अपना जो चीज आप सकते हैं। और दूसरी बात, अभी मैं देखा था ये जो ट्रेनिंग दिखा रहे थे आपने, ये लगता मेरे को ये रिकॉर्डिंग होगी। तो
ऐसा भी इंटरनेशनल के कई कैसेट होंगे इस जूम के जरिए, इंटरनेशनल के जो ऑडियो कैसेट हैं, वीडियो कैसेट हैं, उसके जरिए आप सभी हमारे फेंसर को, खिलाड़ियों को आप दीजिए। और मैं अपने इसके माध्यम से मैं अपने जितने सेक्रेटरी हैं और कोचेस हैं उनको बताना चाहूंगा, जो सेंटर हमने साई ने चिन्हित किया है 7 सेंटर में शुरू करना है, किंतु अभी तक हम सक्सेस नहीं हो पाए जैसा होना चाहिए। कुछ सेंटर में चालू किए हैं, एएसआई है और उसके बाद ये अपना पटियाला है, औरंगाबाद है, नाडियाल है, ये 3-4 जगह तो है। हमें इक्विपमेंट्स के लिए साई बोल रहा आप परचेज कीजिए, खरीदिए। हमने सबको लेटर लिखा कि आप अपना रिजल्ट दीजिए, अपना लिस्ट दीजिए, क्या लेना है आपको, कितने प्लेयर है, आपके डिस्ट्रिक्ट कितने है। मुझे बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि मुझे वो अभी तक कोई पर्याप्त नहीं होता है और मुझे ऊपर से डांट सुननी पड़ती है। तो आप भी बोलिए, अपने खिलाड़ी लोग को भी है, कोचेस भी है, वो अपने सेक्रेटरीज को, अपने कोचेस को आप लाइन अप करके क्या क्या आपको ट्रेनिंग सेंटर में जरूरत पड़ती है, कहाँ से कौन सा इक्विपमेंट लगता है, वो आप जल्द से जल्द फेडरेशन को भेजें। इसके साथ में आपके सभी को मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2020 में तो अभी एक ही है, हो सकता है अभी 2 इवेंट बचे हमारे, जो सैटेलाइट टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, एशियन चैंपियनशिप है, उसको पार्टिसिपेशन करेंगे तो हो सकता है उसमें एक दो हमारे फेंसर आ भी सकते हैं। तो उसमें घबराई जरूरत नहीं भी आए तो आप 24 की तैयारी आज से शुरू करें। इसी माध्यम से, ये जूम के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से आप लोग बिल्कुल भिड़ जाए और ऐसा करके दिखाएं कि आपको मेडल चाहिए, हमें ओलंपिक में जाना है। वो आप जाओगे तो आपका नाम तो होना ही है, आपके परिवार, अपने गार्जियन का नाम होगा, आपके स्टेट का नाम होगा, अपने भारत का नाम होगा। मेडल आएगा तो आपको, मेडल आएगा तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, हमको भी लोग पूछेंगे। तो ये सब आप लोग हमारे सैनिक लोग हैं, हमारे कोचेस, टेक्निकल ऑफिसर, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे प्लेयर सैनिक है। आप लोग लड़ोगे तो हम भी आगे कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक खिलाड़ियों को सुविधा मिले और मुझे आशा है बहुत जल्दी, साई बहुत कर रहा है, साई बहुत अच्छा काम कर रहा है। साई ने अभी कई कमेटी बनाई है, कई उसमें फैंसी को बहुत स्पेशली हमारे सेक्रेटरी जो है जलानिया जी हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे जो खेल मंत्री है रिजू जी, वो भी बहुत ही स्पोर्ट्स पर्सन है। मैं 2008 ओलंपिक से उनको जानता हूँ और बहुत वो है, मतलब बहुत सरल स्वभाव के हैं। कोई भी जाके उनसे मिलता है, हर तरीके से उनको मदद देते हैं, चाहे वो ओलंपिक गेम हो, नॉन ओलंपिक गेम्स हो। उसी प्रकार सेक्रेटरी के भी बहुत बारे में हमने जो गलत प्रचार प्रसार किया था, उससे भी हम जब मिले तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने हमें अच्छा किया है। और मैं आशा करता हूँ कि हम प्यार से, हम अच्छे से अच्छा करेंगे। कोई पर्सनली जो भी पैसा मेरा पर्सनल खाते में जाना नहीं है, ये खिलाड़ियों के उन्नति के लिए, उनके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये भारत का सरकार का नाम होगा। तो उसी प्रकार जो काम कर रहे हैं उसलिए भारत, हम ओलंपिक में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ओलंपिक मेडल लाना बहुत जरूरी है, एशियन गेम में मेडल लाना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी से फिर पूर्ण आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपसे पूर्ण अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, साफ सुथरा रहें। आप जितने खिलाड़ी, जितने फेंसर है, आधे घंटे में अपना, एक घंटे में अपना हाथ धोएं और सैनिटाइजर करें, अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, अधिक से कम लोगों से मिले, जो भी आता बाद में। अब मुझे 3 मई तक, हम देखो क्या होता 3 मई, अभी आप लोग यूएस में देख रहे होंगे, इटली में देख रहे होंगे, फ्रांस में देख रहे होंगे, महामारी हमारी फैली हुई है, यूएस की बड़ी हालत खराब है, कितने लोग डेथ हो रही है, जो डेथ हो जा रही है उनके परिवार को भी बॉडी नहीं मिल रही है। तो अभी हम सोच के हम टेंशन में हैं। तो अपने जो भी माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उनसे आप दूर रखिए, उनको 1-2 मीटर में घर में बैठिए। इसके साथ आपको शुभकामनाएं और विक्रम जम्वाल को भी बधाई, और उसके साथ जितने हमारे कोचेस, सीनियर कोचेस हैं जो इस प्रोग्राम में सक्सेस किया, उनको भी बधाई। ये अपना सब काम धाम छोड़कर फेंसिंग के लिए कर रहे हैं, ये जरूर आप लोग की इतनी मेहनत जरूर हमें फल लाएगी। और साथ में मैं साई के जितने डायरेक्टर्स लगे हैं, जितने सीनियर ऑफिसर हैं,
जितने पदाधिकारी हैं, मिस्टर संदीप प्रधान डीजी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट मिनिस्टर और हमारे अध्यक्ष अपना फेंसिंग फेडरेशन के और भी पदाधिकारी, सभी स्टेट के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, आप सबको मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं, साथ में सुरक्षित रहने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू बशीर सर। बशीर सर से हम इससे ज्यादा सच्चे वंडरफुल वर्ड्स, बशीर भाई ने इतनी हमारी कोशिश मदद की है। बशीर सर इस 45 इयर्स का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का उनका जो एक्सपीरियंस है वो झलक गया। सर थैंक यू वेरी मच आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस के लिए। आपकी डायरेक्शंस के अनुसार सारे कोचेस, टेक्निकल ऑफिशियल हम पूरी जान लगा देंगे। थैंक यू बशीर सर। नो ओवर टू, थोड़ा सा मैं आप लोग का प्रोग्राम देखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। तो आप लोग क्या करा रहे हो, अभी तो देखा नहीं था। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बच्चे लोग दिख रहे हैं मेरे को इसमें, उनको भी बोलूंगा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अपन लड़ेंगे जीतेंगे। अपन जैसा ओलंपिक की लड़ाई है अपनी, उसी कोरोना से लड़ाई है, कोरोना को भगाएंगे। आप लोग घबराइए मत। ये 2 जन जो बैठे हैं, जरा दूर दूर बैठो। 2 बच्चे कौन बैठे हैं? हाँ जरा आजू बाजू, थोड़ा सा बाजू सड़क के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। श्री सूर्या, मेंटेन द डिस्टेंस, स्टे थोड़ा अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। श्री सूर्या म्यूट में हो गया, सुन लिया सर। ओके, चलिए आप लोग ट्रेनिंग घर में भी दूर दूर बैठेंगे, कोई ऐसा आप लोग भी जरा बताइए उन लोग को। साथ में ट्रेनिंग के फेंसिंग के अलावा कोरोना के संबंध में भी आप जानकारी दीजिए। ओके, थैंक यू सर। नो, हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ बंदों का नाम लेना चाहता हूं। हमारे पास अजिंक्य दुधारे हैं, इंटरनेशनल रेफरी, बोमचा सिंह हैं, भूपिंदर सिंह हैं, और बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री सूर्या, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है, डोंट, बोथ ऑफ यू शुड नॉट सिट टुगेदर, मेंटेन ए डिस्टेंस। नाउ first question is for Mr. Mohit Ashwani. We have got 6-7 questions. There's a bombardment of questions. Question ji, if you can mute others and unmute instructors only, please. Mohit ji, पहला question है कि disengagement and indirect attack क्या difference है? Sir, just be brief, sir. हमें बहुत questions आ रहे हैं, sir. Disengagement and indirect attack. इनडायरेक्ट अटैक 2 तरह का होता है, डिसएंगेजमेंट एंड कट ओवर। ओके सर। हाँ, और डिसएंगेजमेंट उसका पार्ट है। ये रिपोस्टे, इनडायरेक्ट रिपोस्टे बोलते हैं, अटैक नहीं। अटैक डिसएंगेजमेंट एंड कट ओवर है। इनडायरेक्ट रिपोस्टे जो होता है वो 2 तरह का है, कट ओवर एंड डिसएंगेजमेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, जब आप इप्पी का अटैक एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इपी का अटैक हम करने के टाइम में सोचते हैं वो ये है कि तब करना है जब स्कोर है, टॉस हो गया है, तुम टॉस हार गए हो, लास्ट 10 सेकंड बढ़ जाए तब अटैक कर दो। नहीं, अटैक नहीं करना, ये फॉइल नहीं है जिसे राइट ऑफ वे मिलता है। इपी में पेशेंस जरूरी है, अटैक जरूरी नहीं है। अटैक हमेशा आप प्रेफरेंस देता है, लेकिन एपे में नहीं। एपे में पेशेंस जरूरी है, एपे में मूवमेंट जरूरी है, एपे में उसका टेंशन फील करिए कि वो क्या चाहता है या क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसको देखिए। लेकिन अटैक मत जल्दी जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप अटैक पे जाएंगे तो वो ऑलरेडी वेट कर रहा है काउंटर अटैक मारने के लिए। इसलिए में अटैक होते हैं, इसीलिए आपको पता है कि उसमें टाइमिंग्स आ गए अभी। अच्छा सर, अब दूसरा क्वेश्चन है मोहित जी की, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंड ऑफ द ब्लेड इज ऑथराइज्ड इन ईपी? मैक्सिमम बेंड आर्क ऑफ द ब्लेड 4 to 7 centimeter. Which bend, flexibility or bend? Bend, that arc which is required while playing. 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter. Okay. Blade from the center of the blade. एक और क्वेश्चन है, प्लीज बताइए कि हाउ टू रन हैंड बैक मूवमेंट्स? मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड बैक मूवमेंट्स, हैंड पुट मूवमेंट्स बहुत इजी है। हैंड बैक मूवमेंट, हैंड बैक मूवमेंट जो है आप 1-2 से सीख सकते हैं। 1 फ्रॉम हैंड, 2 फॉर लेग। जब आप 1 फ्रॉम हैंड करेंगे तो आप टारगेट बोर्ड पे ये स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज, और यही सेम बैकवर्ड्स ऑल्सो, 1 फॉर हैंड, 2 फॉर विड्रॉवल। तो आपकी ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी। सेम इन लॉन्च एंड सेम इन अदर एक्शंस ऑल्सो। यू कैन स्टार्ट विद 1 फ्रॉम हैंड, 2 फॉर लेग। इस काउंटिंग में इट विल इंक्रीज योर स्टार्टिंग विद द हैंड पोजीशन। इवन व्हाइल
refitting also. Thank you, sir. Thank you. No, we have a lot of questions for referees coming up. First question, it is addressed to Deepak. Deepak, are you there? Sir. Deepak, what is P card in IPI cumulative with other penalties? P card in IPI cumulative with other penalties. आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? ये क्वेश्चन इट हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश टू अस. Deepak, you are there? Unmute him first. Unmute him. I think he is. Krishan ji, if you can unmute Deepak. Yes, sir. I am here. You listen the question? Yes, sir. Please answer. Sir, जो P कार्ड्स हैं उनको सर अलग से स्कोर शीट पे लिखा जाएगा. वो जो बाकी पेनल्टीज हैं उनके साथ उनको क्यूमुलेट नहीं किया जाएगा. ये सर इसका रूल है. क्यूमुलेटिव का थोड़ा मतलब समझा दें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव इन हिंदी, अगर आप बता सकते हैं तो. लाइक अगर नॉर्मल पेनल्टीज हैं उनके साथ क्या जो P कार्ड की पेनल्टीज हैं उनको क्या मिक्स किया जाएगा? तो सर इसका आंसर है नहीं. उनको मिक्स नहीं किया जाएगा. P कार्ड्स की जो पेनल्टीज है उनको अलग से नोट किया जाएगा एंड जो नॉर्मल ऑफेंस पेनल्टीज हैं उनको अलग से नोट किया जाएगा. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. ये बताइए कि एक बार आपको P कार्ड की और अदर पेनल्टीज गिवन इन टीम बाउट, डज इट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बाउट और वहीं पे खत्म हो जाती है वो? नो सर, वहीं पे सर खत्म हो जाएगी. P कार्ड इज फॉर द ओनली वन मैच और ओनली फॉर वन बाउट. अच्छा, अगला क्वेश्चन है पैरी और बीट करते समय. व्हाइल डूइंग बीट और पैरी, इफ अपोनेंट्स ब्लेड इज ब्रोकन, इज हिट वैलिड? नो सर. इट विल बी एनल्ड. अगर पैरी या बीट करते समय ब्लेड टूटता है तो रेफरी इमीडिएट लाउड वे में हॉल्ट बोलेगा एंड जो टूटा हुआ वेपन है उसे अपने पास कस्टडी में लेगा एंड वो उस हिट को एनाल करेगा सर. ओके, ये क्वेश्चन बाय मेरी चैट पे बाय फॉर रशीद के लिए आया है. सर मेहंदी हसन फ्रॉम बांग्लादेश, ही सेड, रशीद यू आर देयर? यस आई एम. इन्होंने पूछा है, कैन ए सेकंड 5 मिनट ब्रेक बी ग्रांटेड फॉर द सेम इंजरी टू द सेम फेंसर इन सेम डे? क्या 5 मिनट की जो ब्रेक मिलती है, मेडिकल ब्रेक, वो सेम फेंसर को एक दिन में 2 बार मिल सकती है गेम खेलते हुए? इसमें एक सेम इंजरी के लिए सेम डे में आप दूसरी ब्रेक को क्लेम नहीं कर सकते. इट मींस कि एक दिन में आपको एक बार ही जो है वो सेम इंजरी के लिए कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको दूसरा इंजरी होता है तो फिर आपको अनदर 5 मिनट जो है वो मिल जाएंगे. आज मेरे लिए बड़ा आसान हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेंडिंग क्वेश्चंस बाय नेम कि वो किस कोच को या रेफरी को पूछना चाहते हैं. इससे पहले कि मैं लोहित के पास जाऊं, अनदर क्वेश्चन फॉर मोहित जी. यस सर. ये क्वेश्चन आपके एक स्टूडेंट ने भेजा और मुझे बोला है कि मेरा नाम मत लेना, अदरवाइज सर विल डांटो मी. उन्होंने बोला है, हाउ कैन वी डेवलप द टेम्पो ऑफ फेंसर फॉर चूजिंग राइट ऑफ टाइम फॉर हिट? some exercise you can suggest. टेम्पो जो है, सबसे पहले टेम्पो क्या है? टेम्पो इज राइट चॉइस ऑफ मूवमेंट. टेम्पो 2 तरह का होता है. वन इज साइकोलॉजिकल टेम्पो, वन इज फिजिकल टेम्पो. साइकोलॉजिकल टेम्पो इज इनबिल्ट क्वालिटी, यू कैन नॉट इंप्रूव. ये कृष्ण सर पहले बोल चुके हैं आपको. और फिजिकल टेम्पो यू कैन डेवलप. फिजिकल टेम्पो 2 तरह का होता है, टेम्पो विद द हैंड, टेम्पो विद द लेग. अगर आप ऐसे हाथ को, फॉर एग्जांपल ओपोनेंट हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो आपको इस हाथ की मूवमेंट पे टाइम चूज करके हिट करना है. सेम विद द लेग ऑल्सो. लेग टेम्पो में ओपोनेंट सबसे जो मेरे लिए फेवरेट मूवमेंट है, जब ओपोनेंट पीछे जाके और सडनली पैर ऊपर करता है आगे आने के लिए, दैट इज द बेस्ट मूवमेंट टू मेक अ हिट. बेस्ट एवर मूवमेंट. you can make flush, you can make launch, you can make any action because उसका जो फ्रंट फुट हवा में है, ना तो वो पैरी कर सकता है, ना वो काउंटर अटैक कर सकता है. वो सबसे ऑड मूवमेंट होती है. दूसरा क्वेश्चन है, मेरे को किसी ने पूछा है, ये चैट में था कि लेफ्ट हैंड फेंसर के साथ जब हम बाउट खेलते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है. अगर आपका कोच राइट हैंडर है तो वो आप उसको कैसे लेसन दें ट्रेनिंग में अपने फेंसर को कि ही गेट यूज्ड टू प्ले विद लेफ्ट हैंडर आल्सो, बिकॉज़ कईयों का लेफ्ट हैंड नहीं चलता है सर. जो मेरी जो एडवाइस है वो सभी से यही है, कोचेस से, कि प्लीज स्टार्ट यूजिंग बोथ हैंड्स.
क्योंकि कई फेंसर जो ऐसे होते हैं, जैसे आपको भी पता है परमवीर धालीवाल, ही वॉज अ वेरी गुड फेंसर, एपे फेंसर। मैंने उनको एक बार पूछा था कि तू भी लेफ्ट हैंडर है, मैं भी लेफ्ट हैंडर हूँ, पर वो ही वॉज नेशनल गेम्स चैंपियन ऑल्सो 2004। तो मैंने उसको पूछा था तेरे को प्रॉब्लम नहीं आती है क्या, मैं जब तेरे को लेफ्ट हैंड दोनों हम करते हैं तो तेरे को राइट हैंड की फील नहीं होती? कहता है नहीं, मुझे ओपोनेंट मिलना चाहिए, बाकी सब मेरा ठीक है। तो ये बस ही वॉज हिज फ्रेज। बट बाकी फेंसर जो होते हैं वो, उनके लिए एक लेफ्ट हैंडर को ट्रेनिंग करानी बहुत जरूरी है, लेफ्ट हैंडर की फील करवानी बहुत जरूरी है। तो कोच को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप करवाइए। थैंक यू सर। अपने आप हो जाएगा, हम भी ऐसे हुए थे। अच्छा, can you Lohit, please? Lohit, are you there? Yes, sir. Lohit, a question for you again from the Nepal. Somebody has sent. He said, can a fencer who has been allowed a 5 minutes break following a injury time resume the bout before the 5-minute period has ended? कि कोई Yes, भी absolutely. फेंसर जिसको 5 मिनट का मेडिकल ब्रेक दिया गया है, अगर वो फील करता है तो क्या 5 मिनट से पहले वो शुरू कर सकता है? Yes, absolutely. 5 minutes is the minimum Maximum. time that is given. Yeah, maximum time given, so that they should not exceed the 5 minutes. But if the fencer is ready to fence before the 5 minutes, he can absolutely, fence. That shouldn't be a problem. Hello, He is allowed. Lohit, you're not audible. Lohit, Hello. Yes, can you hear me? Lohit, you're audible. Yes, I can hear you. Yes, yes. Krishan ji? You can hear us. Yes. Hello. We can hear Yes, sir. Yes, Vikram sir. Can you hear me? Hello. Yes, yes, Lohit, continue. We are able to hear you. Yes. You are audible. Yes. So I just told you that it is allowed, even if the fencer wants to fence before the 5 minutes break. It is allowed. So that was the question. I think there is a network problem with Vikram sir, so he's unable to ask the other questions. Krishan sir, you may continue with this. Yes, Krishan sir, if you have any questions from the chat box, you can ask us. Yeah, let me check the chat box for the questions. There's a question from someone, Sain Savio. Sir, a doubt is going on the total score is 5 point. Fencer A and Fencer B got 4-4. And they take simultaneous hit at the time point give to Fencer A or B. For what will referee do? I think so. So they want to know, this is a 5-touch bout, and the both are like 4-4, and there is simultaneous touch. Then what will the referee decision? It is very simple, but you can answer it, Roy. Well, if it is simultaneous hit, then they would definitely go for another touch. If the time is up, then they will go for the 1 minute. So if the time is not up, then we have to continue until one gets a single touch. Okay. Let me search any other question if I can find. So for me to elaborate and explain this, if there is 1 minute given, if the 3 minutes is completed and if it is still 4-all, and if it is double touch going on, then before the 1 minute, there is a toss that is being given where the priority is chosen. So the fencer who gets a priority wins at the end of 1 minute if nobody scores a touch. But if somebody scores a single touch, he becomes the winner. Mohit sir, there is some question. Someone is asking about what is the basic difference between the like a beat and compound attacks. So whether the beat is a part of compound attack or the compound attack is totally different than the beat. Beat, as I've already shown in the slide, you can start the attack with the beat. Beat attack, beat. You can prepare the attack with the beat. Compound attack. Already, the action has been done by Daniel Master, and the pupil was making beat on the hand, beat and hit on the hand. At the same time, he was making parry, and pupil was exceeding on the further target. So you can prepare attacks with beat, and compound attack also can. For compound attack also, you can use beats. There is one more question. It is again for the Mohit sir. It is regarding the training. They were like,
what is the basic difference in a fencer? Means if they want to improve their direct actions, he wants to say like how they can finish actions directly without going for the compound attack because they don't want to lose time. Yes, it depends on your opponent, what action he makes. If he makes parry, then you have no other choice left to change the line of attack. But if he comes straight, don't go on chest first. Go on forearm if his hand is exceeded. That is why we are teaching that when the hand is exceeded, don't go for chest, otherwise it will be simultaneous or the counter attack of the opponent. This is difference. So if you want to go straight when he is making or she is making counter attack on you. But when her arm or his arm is straight, go on hand first. No, don't straight away go on chest, because if you go on chest, definitely either there will be a simultaneous lamp or single lamp of the counter attacker, because he's straight, standing straight, and you are in the launch position or clutch position. Thank you, sir. There is one question for Mr. Deepak Singh Patial. Sorry, it's Dr. Deepak Singh Patial. This question is regarding, again, for the P card. They want to know whether this P card, I think it is already asked by Vikram, sir. I have to change the question because I think this was the previous question. Now, other question is again is regarding the referee, and Deepak Singh, I think, is the right person to answer it. It is regarding the Kora core. So he wants to know whether it is allowed in épée or not. सर कोरा कोर एपे में क्या फॉयल एंड सेबर में भी अलाउ नहीं है, बट एपे में अगर कोरा कोर में मैं स्पेशली कोड करूंगा अपने रेफरीज को कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कोरा कोर में. कुछ रेफरीज अगर गार्ड हिट होता है तब भी हॉल्ट कर देते हैं. वो लोग प्लेयर्स की प्रायोरिटी को खा जाते हैं, एक तरह से बोलूंगा. तो मैं रेफरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो इसका जवाब, जो क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, कोरा कोर जो है एपी में भी अलाउ नहीं है. एंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा कि कोरा कोर के टाइम में प्लीज रेफरीज जो हॉल्ट बोलने में जल्दी ना करें. वो एक्शन अगर उनको लगता है कि कुछ कोई एक्शन बॉडी टच होने वाली है, उससे पहले हॉल्ट बोल देते हैं. एंड हिट एंड कोरा कोर होता है तो बोलते हैं, वो रेफरीज बोलते हैं कि बिफोर हॉल्ट. तो प्लीज इस चीज को फील कीजिए. एंड ये जो प्रैक्टिस है ये नंबर ऑफ बाउट्स और नंबर ऑफ सिचुएशंस देख के आएगी आपके अंदर. एंड इस चीज को फील कीजिए कि मुझे कब हॉल्ट बोलना है और किस पोजीशन में हॉल्ट बोलना है. एंड कोरा कोर अगर बॉडी टच हो गई तो वो कोरा कोर है. थैंक यू सर. Thank you very much. Krishan ji, can I take on? Sure, sir. We are waiting for you. Sorry, mera wo actually internet has gone. Now, with the tempo of the concept, any questions pending? I have taken 3-4 questions, sir. If there is anything you left with you can ask. Okay, no, nothing else. I just wanted if you can get Dinah online, because हमने promise किया था every day we will get one good extraordinary person online. But before that, I just wanted to announce something from my side. I saw these two boys, Siri Surya. I don't know from which state. Their coach can contact me. They have been writing the notes every day. Okay, so I have decided that I will give them one sword of Ippi, foil or saber from my side, seeing their commitment as a senior fencer. This is my duty. So beta, please tell your coach to contact me and take your sword from me as and when you require. Dinah need to be unmuted. Okay. Hello Dinah, welcome. How are you? I'm fine, sir. Okay, most of you who knows Dinah, you know Dinah, but I call Dinah as a Sofia Valenki of India. Because she is 42 years, she has got 2 kids too. Dinah is also only one. No, you have one, I know. Dinah is also have got a 1 kid, but she is one of the best fencers we have. And Dinah, we fully appreciate your concerns and we are happy you are with us. Please give us your opinion on whatever you want to say related to fencing. You have got 1 minute to 2 minutes with you. Okay, sir. First of all, good morning, everybody. First of all, I want to convey my thanks to the Fencing Association of India for giving me the opportunity to share my experience.
Well, I started fencing from 2002 when I was 12 years old, and now I'm a mother, and I have a 5 years old daughter. But still, I'm playing. You know what? I love fencing. That's why. And it is very hard through my journey as a player. But keeping aside all these things, I want to convey a message to you all that the dedication and hard work of the players is endless, and one must put all their effort into it. So as a player, you must show your respect to the coaches, to your colleagues, even to your teammates and juniors and seniors as well. uh, and also I think you all might have known about my performance, but actually I want to tell you one thing to you all, that one must never give up as a on your dream as a player, but so dream high and dream big. And lastly, reaching one's goal is a journey and responsibility of your hard work and dedication. This is the message from me, especially to the young fencer. So stay safe, and best of luck for your bright future life. And thank you for much. Thank you so much. May God bless you all. Thank you, sir. Thank you, Diana. God bless you also. Those were very mature words, and I am trying my bit to get all these senior fencers coming and giving a message for 1 or 2 minutes, because you guys are the role model for the next generations who are watching. Like for us, Hemjit, Megalamba Bhaiya and all these were role models. They motivated us to play. So you have done your bit for the fencing, and you guys need to be promoted. Thank you very much. Stay focused. Thank you, sir. Thank we are you so happy you much. are with us. Thank you so wanted much, to sir. thank you. And the end, I wanted to thank you, our speaker of the day, Mr. Mohit, once again, and especially to his boy who was helping him. I could see glimpses of you in him, and I hope he is our future Olympian in future. Another, in my bits, I always recommend all coaches to go through one TED talk, because somebody who has done something earlier, they have got a pearls of wisdom to tell us. So आज की जो मेरी TED talk है, मैं आपको recommend करूंगा. That is a TED talk of the art of focus. The art of focus. हम उसकी community पे link भी डालेंगे. This is by Christina Bangsu. She started playing shooting at the age of 23rd, and she became world champion at 42 years of age. Please see that TED talk. She tells you something about the focus, which is wonderful to watch. Other than that, I also want to thank all of you to be there. Please like our Fencing Association of India's page. It has got 498 likes. We want to make it till 1,000 till the time we reach. Thank you once again to all of you, and request all of you to log out. Sir, in case you want to say something, Mr. Mohit, please, sir. No, thank you very much. Thank you. Thanks, sir. Okay, thank you very much. Tomorrow again, we have a surprise for you. Some guest speaker is coming. Thank you very much. Stay safe, and please watch today evening 5 to 6 class. Tomorrow again, we have a class by Mr. Mohit on the defensive actions in IP. Thank you very much. Log out. God bless us all.